کیسا کمپیریزن رہا؟ پہلے کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے تھے اور پھر ریونیو پہلے میکسیمم 400-500 ڈالر تک بن جاتا تھا، میکسیمم یہیں تک تھا. پہلا آرڈر کتنے عرصے بعد آیا تھا؟ اکاؤنٹ بھی میں نے تقریباً جنوری میں بنایا تھا 2020 میں. 5 مہینے میں پہلا آرڈر آ گیا؟ جی 5 مہینے مجھے اس طرح لگے تھے کیونکہ میں نے اس ٹائم گگ وغیرہ تو بنائی تھی لیکن مجھے کوئی سیٹنگ وغیرہ نہیں کرنی آتی تھی. 2025 میں میں نے گگ رینک کرنا ہے، کیا آرگینیکلی پاسبل ہے؟ کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے، ہر بندہ جو ہے نا VVROs لیتا ہے. آپ سروسز کیا دیتے ہو اور کب سے دے رہے ہو؟ گیسٹ پوسٹ اور PBN بیک لنکس. چارج کتنا کرتے ہو اور آپ کو لنک پڑتا کتنے کا ہے تقریباً؟ $50 میں بھی لنکس لے رہے ہیں یا $10 میں لے رہے ہیں تو یہ ہے کہ اس میں کافی گیپ بن جاتا ہے، آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. میں خود ساؤتھ پنجاب کا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہاں کے حالات کتنے ٹف ہیں، اس لیے مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، میں بہت خوش ہوتا ہوں آپ جیسے لوگوں سے مل کے. COVID-19 میں جب تھا نا 2019 میں FSC جوائن کی ہوئی تھی، سیکنڈ ایئر میں تھا. اس ٹائم ہمارے پاس بائک تو تھی لیکن پیٹرول کے پیسے بھی نہیں تھے. کتنے آرڈرز ہونے چاہیے چاہے آپ خود سے لو یا آرگینیکلی آئیں؟ اگر آپ کی ایک گرافک کی ہے تو اس پہ ڈیفرنٹ آرڈرز لگنے چاہیے، اور اگر SEO وغیرہ کی جانب آپ نے جانا ہے تو پھر اس پہ زیادہ لگیں گے کیونکہ اس پہ ٹریفک زیادہ ہے. ملٹیپل اکاؤنٹس چلانے کا کوئی جگاڑ بتاؤ. جی آپ نے موبائل بھی الگ لینا ہے اور لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ کہہ لیں وہ بھی آپ نے علیحدہ ہی یوز کرنی ہے تاکہ ٹوٹلی سیپریٹ ہو. سوئچ تو نہیں کیا، دونوں پیرالل لے کے چل رہے ہو، پھر SEO کا کیسے خیال ہے؟ لیکن بعد میں کافی لوگوں سے سنا کہ SEO اینڈ ویب سائٹس وغیرہ کے حوالے سے پھر میں نے آئی اسکلس کو جوائن کیا. ماشاءاللہ سے بہت زبردست، بہت فائدہ ہوا. پیرنٹس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ اب ماشاءاللہ سے پیرنٹس دونوں کو عمرہ بھی کروایا ہے، ابھی وہ خوش ہیں ماشاءاللہ، گھر بھی لیا ہے اپنا، اچھا چل رہا ہے. السلام علیکم، آپ کو ملواتے ہیں حفیظ اللہ سے، جنہوں نے ایک چھوٹے سے شہر سے اپنا کریئر سٹارٹ کیا اور آج ماشاءاللہ $2500 اگر ایوریج نکالی جائے تو اتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں فری لانسنگ کے ذریعے. ان کی انسپائرنگ سٹوری، ایک چھوٹے سے شہر سے ان کا تعلق ہے جس کا نام ہے فتح پور، لیا کے قریب ایک شہر کا نام ہے، وہاں سے یہ بلونگ کرتے ہیں. اور اس نے چھوٹے سے شہر میں رہ کے گوروں کو سروسز دینا اور دنیا کے بہت بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے سروسز دینا اور $2500 ریونیو جنریٹ کرنا پر منتھ، ایک دفعہ بھی نہیں. تو یہ یہاں تک کیسے پہنچے اس طرف ہم بعد میں آئیں گے. ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ فری لانسنگ کیسے انہوں نے سٹارٹ کی، اور اس کو اگر ہم آج 2025 میں سٹارٹ کرنا چاہیں تو کیا سٹل ریلیونٹ ہے یا نہیں. حفیظ اللہ کیسے ہو؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں. اچھا، سب سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا 2025 میں بھی فائیور سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور اس پہ سروسز دی جا سکتی؟ جی سر، بالکل ایسے ہی ہے. فائیور پہ آپ سروسز دے سکتے ہیں 2025 میں بھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو رینک کرنا، کیونکہ ٹریفک زیادہ آ چکی ہے، اب لوگ بہت زیادہ آ چکے ہیں تو اس کو رینک کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ کر سکتا ہے، رینک پاسبل ہے ابھی بھی. آپ کی اسٹوری بڑی انسپائرنگ ہے، میں اس طرف آؤں گا، اس کو میں ایک سسپینس کے طور پہ رکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے. سب سے پہلے 2025 میں میں نے گگ رینک کرنا ہے، کیا آرگینیکلی پاسبل ہے، یا جس کا نام ہم نے VVROs رکھا ہوا ہے کہ پیڈ اپنے ہی آرڈرز لینے تو اس کے تھرو رینک کرنا، مطلب دونوں کو اگر آپ کمپیریزن کرو تو مجھے بتاؤ. سٹارٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے گگ کو بنانا اچھے سے ہے، اس کے امیج وغیرہ اچھے سے بنانا ہے. اچھے گگ سے کیا مراد ہے؟ سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی اچھا گگ ہونا چاہیے. اچھے گگ میں سر یہی ہے کہ ڈسکرپشن وغیرہ خود ہی لکھی ہونی چاہیے تاکہ میننگ فل ہونی چاہیے، تاکہ جو چیز آپ نے بتائی ہے نا وہی آپ پرووائڈ کر سکیں. گگ کا ٹائٹل ہم اپنے کمپیٹیٹر سے دیکھ سکتے ہیں؟ کمپیٹیٹر سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں نے سیم لگایا ہوتا ہے، کافی نے ڈفرینٹ لگایا ہوتا ہے، پھر آپ ان سب کو اکٹھے کر کے کوئی ایک ٹائٹل آپ اپنی طرف سے ارینج کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں کس چیز کا زیادہ خیال رکھیں؟ ڈسکرپشن میں زیادہ چیز وہی آپ نے بتانی ہے جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے جو چیز آپ نے بتائی ہوئی ہے وہی آپ پرووائڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ کلائنٹ سیٹسفائی ہوں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، اب ٹائٹل بھی ہو گیا، میری ڈسکرپشن بھی ہو گئی، ایک اچھے گگ کا آپ نے نام لیا تھا، ایک اچھے گگ کے لیے مزید کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ٹیگز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ٹیگز کے ساتھ ساتھ جب آپ نے گگ کو پبلش کر دیا ہے اس کے بعد رینکنگ میں مین فیکٹر جو ہے نا VVROs کا بھی ہوتا ہے آج کل، کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے، ہر بندہ جو ہے نا VVROs لیتا ہے. پہلے نہیں لیتے تھے، پہلے بندہ انہی چیزوں پہ جو ہے نا سیٹنگ کر کے آرگینیکلی رینک کر سکتا تھا، لیکن اب ٹریفک بہت زیادہ ہے، ہر بندہ VVROs کی جانب جا رہا ہے. اگر آپ نہیں لیں گے VVROs کو تھوڑا ایکسپلین کرو ایک نئے بچے کے لیے کہ کیا ہوتے ہیں VVROs. یہی ہے کہ آپ نے فیک آرڈرز لگوانے ہیں، اس کے لیے ایک علیحدہ سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے RDP اور ڈفرینٹ اکاؤنٹس وغیرہ. تو وہ سیٹ اپ آپ لوگ اپنا بناتے ہو یا کسی نے لگایا ہوتا ہے اس سے آؤٹ سورس کرتے؟ سیٹ اپ اپنا بھی بنا سکتے ہیں یا کسی سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں، ان کو پے کر کے آپ VVROs لے سکتے ہیں. کتنے آرڈرز ہونے چاہیے چاہے آپ
खुद से लो या ऑर्गेनिकली आए, ये आपकी गिग को रैंक करने की? ये हर एक जो है ना कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एक ग्राफिक की है तो उस पे डिफरेंट ऑर्डर्स लगने चाहिए, मतलब डिफरेंट नंबर्स के। और अगर एसईओ वगैरह की जानिब आपने जाना है तो फिर उस पे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि उस पे ट्रैफिक ज़्यादा है ग्राफिक की निस्बत मेरे ख्याल में। ग्राफिक्स पे कम है, एसईओ पे ज्यादा है। एसईओ पे भी ज़्यादा है, ग्राफिक पे भी ज़्यादा है, लेकिन graphics ग्राफिक बहुत में बड़ी ये है कि जो है ना निशेज़ ज़्यादा आ जाती हैं मेरे ख्याल में। हाँ। निशेज़ में ये है कि सब कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें आप थोड़े कम वीवीआरओज लेकर भी ऊपर आ सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कंपटीशन पे, कंपटीशन पे कि डिपेंड अगर करता है। आपका मुकाबला कम लोगों से है तो आप कम ऑर्डर्स अगर मिले आपको, फिर भी आपकी गिग रैंक हो ऐसा ही है जाएगी। बिल्कुल। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो फिर ज़्यादा जान वीवीआरओज मारनी लेने पड़ेगी। पड़ेंगे, जी हाँ। अच्छा, इसके बाद आप सर्विसेज क्या देते हो और कब से दे रहे हो? मैं सर 2019 से कोविड-19 के बाद फ्रीलांसिंग में एंटर हुआ था। उसमें मैंने स्टार्ट तो ग्राफिक्स से लिया था, लेकिन बाद में 2022 में आपका आई स्किल्स का मुझे आइडिया हुआ, पता लगा फेसबुक के थ्रू, तो फिर मैंने आई स्किल्स को ज्वाइन किया, आई स्किल्स SCBTX को। और उसके बाद मैंने कोर्स वगैरह देखता रहा और लाइव क्लासेस ली। उसके बाद मैंने फिर ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट की, उससे फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की ज़्यादा। पहले गेस्ट मैं पोस्ट बेचते हो? गेस्ट पोस्ट और PBN बैकलिंक्स। पीबीएन कहीं से आउटसोर्स करते हो जैसे सब लोग करते आउटसोर्स, हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब एक बंदे ने बनाया हुआ है, हाँ आप जी, उससे एक बंदे लिस्ट ने एक ले सेटअप लोगे? बनाया हुआ है, उसको हमने साइट का लिंक वगैरह शेयर कर देना होता है, वो फिर आपको उस तरह के PBN लिंक्स लगा देंगे। आप चार्ज कितना करते हो और आपको लिंक पड़ता कितने का है तकरीबन? क्लाइंट की साइट्स पे भी डिपेंड करता है और उधर से जो लिंक्स आपने लेने हैं उन पे भी डिपेंड करता है। बाकी ये है कि पीछे से अगर आप $50 में भी लिंक्स ले रहे हैं या $10 में ले रहे हैं तो नेक्स्ट आगे आपको मैक्सिमम 50 या 100 में एक लिंक पड़ जाएगा। तो ये है कि इसमें काफ़ी गैप बन जाता है, आपको फ़ायदा हो जाता है, मतलब आधा तकरीबन आपका मार्जिन। आधे से भी ज़्यादा बन जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि 2025 में लोग कहते हैं कि एआई के बाद चीज़ें बदल रही हैं। आज से 2 साल पहले 2022 से आपने स्टार्ट किया, 2019 से स्टार्ट किया, लेकिन प्रॉपर जो ऑफ पेज सर्विसेज आप 2022 से दे रहे हो। क्या अभी भी ऑफ पेज की जो सर्विसेज हैं वो उसी तरह से बिकती हैं जैसे आज से 2 साल पहले बिकती थी? सर पहले भी बिक रही थी, अभी बिक रही हैं, क्योंकि जब तक गूगल है तब तक ऑफ पेज चलता रहेगा, क्योंकि साइट्स के लिए बैकलिंक्स और ये ज़रूरी हैं देखा जाए तो, क्योंकि उनके बगैर तो रैंकिंग वगैरह मैंने ये मुझे नहीं क्वेश्चन लगता। आपसे इसलिए पूछा है, एक्साइटेड भी हूँ आपसे बात करके, क्योंकि माशाल्लाह आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि मैंने एक ग्राफिक डिजाइनर से पूछा ये सवाल, क्या एआई के बाद लोगोज बिकने कम हो गए या नहीं? उसने तो कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। ज़्यादा बिक रहे हैं सर। तो इसलिए वही क्वेश्चन मैंने आपसे किया। एआई में ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा इस तरह हुआ, ग्राफिक में पहले आप चीज़ें जो है ना उठा लेते थे, कॉपीराइट इशू आ जाता था, लेकिन अब ये है कि एआई के थ्रू आप डायरेक्ट बनाएं, कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आता और आप क्लाइंट को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं ग्राफिक में। अच्छा, आपने स्विच की अपनी फील्ड जी, ग्राफिक से एसईओ की ऐसे तरफ, भी जाने। तो ये स्विचिंग कैसी रही? स्विचिंग में ये है कि सर मैंने साथ में ना ग्राफिक को भी लेके चल रहा हूँ। मतलब ये है कि साथ टीम वगैरह है, बंदे हैं, लड़के हैं, वो कर रहे हैं, उनको मतलब ऑर्डर्स वगैरह दे देते हैं, वो कर देते हैं, उनको भी पे कर देते हैं। उधर से भी मतलब जो फ्रीलांसिंग का कैरियर था वो भी चल रहा है साथ साथ। इसका मतलब है कि आप फिर मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हो या एक ही अकाउंट पे हर तरह की सर्विस दी? नहीं सर, मल्टीपल अकाउंट बना रहे हैं। मल्टीपल अकाउंट्स चलाने का कोई जुगाड़ बताओ। मल्टीपल अकाउंट्स के लिए बेस्ट तरीका यही होता है कि आपने मोबाइल भी अलग लेना है और लैपटॉप या टैबलेट कह लें या क्रोम बुक कह लें, वो भी आपने अलहदा ही यूज़ करनी है ताकि टोटली सेपरेट हो। और इंटरनेट का कनेक्शन? इंटरनेट का कनेक्शन भी बेहतर यही होता है कि आप सेपरेट लें। स्टार्ट में यह है कि अगर वाईफाई लगी हुई है तो आप स्टार्ट में 2-4 अकाउंट्स रन करें, लेकिन ये कि जैसे ही वो रैंक होते हैं ना तो आप उनको अलहदा कर दें तो बेहतर है। अब लेट्स सपोज मेरे पास 6 अकाउंट्स में रन करना चाहता हूँ, 6 मेरे पास मोबाइल्स पड़े हैं, तो मैं हर मोबाइल को जाके मैनुअली जाके चेक करूंगा कि किस पे मैसेज आया है, किस पे वो order सर है। लैपटॉप पे आपको शो हो जाते हैं, डायरेक्ट बंदा दूर से देखता है, कोई ना कोई मैसेज आया होता है तो बंदा पहुंच जाता है। मतलब आपने इसी तरह टीम बिठाई हुई है, बंदे बिठाए हुए हाँ जी सर, टीम में भी है और भाई भी हैं मेरे, मैंने उनको आर्मी से वापस बुला लिया था। हैं? आप तो यार हमारे मुल्क का नुकसान कर रहे हो, लोग अच्छी वाली जॉब कर रहे हैं और आप उनको जॉब से हटा के बस अपना सर काम आपको दे पता है उसमें निज़ाम बहुत मुश्किल चलता है, घर का गुजारा चल जाता है, लेकिन ये है कि अगर आगे बढ़ना है तो फिर फील्ड को चेंज पहले करना वो पड़ता कितना है। कमा रहे थे और अब वो कितना कमा? पहले सर जब उन्होंने जॉब छोड़ी थी तो आई थिंक 35,000 या 40,000 मैक्सिमम होगी सैलरी? जी जी। ओके। और अब माशाल्लाह मिनिमम भी $1,500-2,000 प्लस निकाल रहे हैं। वही भाई जो जी जी, जो आर्मी को जॉब छोड़ हैं। के आए थे। जी माशाल्लाह से। मैं खुद साउथ पंजाब का हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ के हालात कितने टफ हैं, जी बिल्कुल। यहाँ के लोगों की जो माहाना इनकम है वो कितनी कम है, इसलिए मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है, मैं बहुत खुश होता हूँ आप जैसे लोगों से मिलके। तो अब आप मुझे स्टोरी बताओ 2019 में, जस्ट मतलब हमारे लिए तो कल की बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो तब आप
FSC कर रहे थे, you were too young. कोविड-19 में जब था ना 2019 में, उसमें मैंने FSC ज्वाइन की हुई थी, सेकंड ईयर में था। उस टाइम हमारे पास बाइक तो थी लेकिन पेट्रोल के पैसे भी नहीं थे। मतलब सम टाइम ऐसा होता था कि बंदा पैदल चला जाता था एकेडमी पढ़ने के लिए। उसके बाद यही है कि फिर भाई आर्मी में थे, उनको मैंने कहा था कि मोबाइल अरेंज कर दें ताकि मैं थोड़ा स्टार्ट करूँ कैरियर अपना। तो भाई ने मोबाइल अरेंज कर दिया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखा। सर वो बहुत ही नॉर्मल था, मतलब कह लें कि वो भी 6-7 हज़ार 10 हज़ार वाला मैक्सिमम था। उसके बाद फिर कुछ टाइम मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, आपकी देखी, काफ़ी लोगों की देखी। फिर मैंने स्टार्ट किया ग्राफिक्स से। 2019 के बाद 2020 में मैंने अपना पहला फाइवर का अकाउंट बनाया था। उसमें फिर मुझे गिग वगैरह भी नहीं लगानी आती थी उस टाइम। मतलब अकाउंट को सेलर से बाइंग में कैसे स्विच करना है वो ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद भी काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ये है कि बंदा छोड़े ना, लगा रहे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाता है बंदे को। पहला ऑर्डर कितने अरसे बाद आया था? सर पहला ऑर्डर मुझे लगा था मई में, मतलब 2020 के। अकाउंट भी मैंने तकरीबन जनवरी में बनाया था 2020 में। 5 महीने में पहला ऑर्डर आ गया? जी 5 महीने मुझे इस तरह लगे थे क्योंकि मैंने उस टाइम में गिग वगैरह तो बनाई थी लेकिन मुझे कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी आती थी। मतलब मैंने बनाई, मैंने मोबाइल वगैरह बंद करके रख देते थे, लैपटॉप भी बंद पड़ा होता था, कोई समझ नहीं आ रही थी मतलब उसको कैसे रन करना है, क्या करना है, कोई चीज़ों का आइडिया नहीं था। लेकिन यह है कि उसके बाद फिर मेरे कज़न वगैरह थे, वो कह रहे थे, मैंने उनसे नॉलेज वगैरह ली। आकिब भाई हैं मेरे कज़न ही हैं, तो ग्राफिक के हवाले से मैंने उनसे नॉलेज लिया, काफ़ी सीखा। उन्होंने मुझे गिग वगैरह सेट भी करके दी। फिर उनके पास मैं जाता था काफ़ी। पहले आप बाय रिक्वेस्ट भेजते होते थे ना स्टार्ट में, मैंने ना 3-4 रिक्वेस्ट भेजी ग्राफिक की, तो एक ऑर्डर मेरा लग गया पहला $15 का। तो उस दिन काफ़ी खुशी भी हुई थी। उसको बनाना था क्योंकि ग्राफिक में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और बंदा एक न्यू हो तो फिर उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है। फिर मैं तकरीबन पूरी रात बैठा रहा था, लेकिन वो ये है कि फाइनल फिर भी नहीं हुआ। फिर सुबह टाइम उठकर कज़न के पास चला गया, उन्होंने भी हेल्प की और इधर उधर से सारा हेल्प करके हमने बना ली और ऑर्डर अप्रूव हो गया। तो उसके बाद स्लोली अकाउंट चलता गया, रैंक हो गया। क्योंकि स्टार्ट में पहले 2020 में ये था कि आपके 2-4 ऑर्डर लगते हैं ना तो आपका अकाउंट पहले पेज पे आ जाता था, रैंक हो जाता था। जी कंपटीशन कम था। तो उस टाइम मेरा मतलब इजीली रैंक हो गया। और उस टाइम हमें कम्युनिकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं आती थी क्योंकि स्टार्ट था। खैर कैसे कम्युनिकेट करते थे? इंग्लिश मुझे तकरीबन आती थी, मतलब बेसिक तो सारी आती थी, मतलब बात वगैरह कर लेते थे। बाकी ये कि कज़न से भी थोड़ा बहुत सीखा है ताकि कम्युनिकेट कैसे करना है, क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है। अच्छा, फिर स्विच तो नहीं किया, दोनों पैरेलल लेके चल रहे हो, फिर एसईओ का कैसे ख्याल आया? एसईओ का सर इस तरह ख्याल आया कि कज़न, उनके पास भी हम लोगों ने काफ़ी कहा कि हमें मतलब बताएं क्या चीज़ है, कैसे है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है एसईओ भी अच्छी चीज़ है लेकिन यह है कि ग्राफिक भी बेस्ट है। अगर आप ग्राफिक कर रहे हो तो ग्राफिक करते रहो, अच्छी चीज़ है। मैं ग्राफिक को ही करता रहा 2-3 साल तो, लेकिन बाद में काफ़ी लोगों से सुना कि एसईओ एंड वेबसाइट्स वगैरह के हवाले से, फिर मैंने कहा चलें इस चीज़ को भी ट्राई करते हैं ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए या नॉलेज ही बढ़ जाती है। फिर मैंने आई स्किल्स को ज्वाइन किया, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत फ़ायदा हुआ। कैसा कंपैरिजन रहा? पहले कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे और फिर स्टार्ट में ये था, एक न्यू भी था मैं टोटली, मुझे मतलब काफ़ी चीज़ों से ऑर्डर लगते थे, ऑर्डर कैंसिल भी होते थे ग्राफिक में। लेकिन ये है कि स्लोली वो भी करते रहे साथ साथ, मतलब इतना हमने अर्न कर लिया कि अब हम सेटल हो गए थे, गुजारा चल गया था बंदे का। उसके बाद फिर मैंने आई स्किल्स को ज्वाइन कर लिया ताकि मैं थोड़ा ना आगे बढ़ सकूं, मज़ीद आगे निकलने के लिए। रेवेन्यू पहले मैक्सिमम $400-500 हज़ार तक बन जाता था, मैक्सिमम यहीं तक था। बाकी ये है कि एसईओ वगैरह की फील्ड। पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स होती हैं? एक टाइम पे आपके पास मोबाइल लेने के पैसे नहीं है 2019 में, जी सर, अब माशाल्लाह सेटल्ड हो, कैसा फील होता है? स्टार्ट में सर यही होता है कि पेरेंट्स कहते हैं यार 20,000 कमा लो, बहुत है हमारे लिए। लेकिन ये है कि साथ साथ जब बंदा ज़्यादा अर्न करने लग जाए तो पेरेंट्स भी कहते हैं ठीक है, अच्छा चल रहा है, मज़ीद और जो है ना बनाते जाओ। खर्चे भी बढ़ जाते हैं, यकीनन ऐसे ही है। अब माशाल्लाह से पेरेंट्स दोनों को उम्रा भी करवाया है, अभी वो खुश है माशाल्लाह, घर भी लिया है अपना, अच्छा चल रहा है। चलें हफीजुल्लाह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी और तरक्की दे।